Welcome students in today's class. Lastly, we start the chapter that is C++. Now the next topic is inheritance. Inheritance in C++. In this class, we will see what is inheritance, what are the types of inheritance, and we will see one sample program which is based on inheritance. Okay. So first of all, what is the inheritance? Inheritance is nothing but a mechanism of deriving a new class from the old one. It is called as inheritance. Inheritance मतलब क्या होता है? जो आपकी existing class है, उस existing class से new class derive करना, that concept is called as inheritance. Suppose for example, जैसे आपकी existing class थी, आपने class create की थी, first you are using keyword, है ना? हम आप कीवर्ड लिखोगे क्लास, आफ्टर दैट क्लास नेम, ठीक है? तो मैंने क्लास बनाई एबीसी, ठीक है? उसमें मैंने वेरिएबल बनाया इंट ए, ठीक है? नाउ आई एम डिराइविंग, ये क्लास मैंने टर्मिनेट कर दी, अब मैंने न्यू क्लास डिराइव की, दैट इज क्लास एक्स वाई जेड, ठीक है? मैंने न्यू क्लास बनाई एक्स वाई जेड, ठीक है? तो मैं इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज कर रही हूँ, दैट इज मैंने जो प्रीवियस क्लास बनाई थी उससे मैंने न्यू क्लास डिराइव की, क्लास का नाम दिया एक्स वाई जेड। आफ्टर दैट आप एक्सेस स्पेसिफायर दोगे पब्लिक, वी विल सी व्हाट इज द उसका सिंटैक्स क्या है, ठीक है? तो जो एग्जिस्टिंग क्लास है उससे न्यू क्लास डिराइव करना, दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस. इट इज मैकेनिज्म ऑफ डिराइविंग द न्यू क्लास फ्रॉम ओल्ड वन, दैट इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस, ठीक है? जो ओल्ड क्लास रहेगी, यहाँ पे ओल्ड क्लास क्या थी हमारी, एबीसी, that class is called as base class. इसको आप बोलोगे base class, as well as it is also called as parent class, ठीक है? Base class and parent class. This class ABC is called as base class and parent class, ठीक है? This is called as base class and parent class. After that जो आपने new class derive की, कौन सी class derive की? यहाँ पे हमने XYZ, तो this class is called as derived class. ये हमारी base class हो गई, जो आप उससे new class derive करोगे, that is called as new class, derived class as well as child class. C++ support the concept of reusability, ठीक है? हम inheritance का concept क्यों use कर रहे हैं? reusability के feature को बढ़ाने के लिए. reusability का concept हम use कर रहे हैं कि जो भी variable, जो भी member function आपने इस एग्जिस्टिंग क्लास में बनाए हैं, दैट मींस एबीसी क्लास में बनाए हैं, यू कैन यूज दैट मेंबर फंक्शन इनसाइड अ न्यू क्लास दैट इज एक्स वाई जेड. यहाँ पे आप उसको यूज कर सकते हो, मींस वी आर using the concept of reusability. The function and variable that are used by the object of another class, this feature is known as inheritance. ठीक है? जो भी variable आपने यहाँ पे define किए, member function यहाँ पे define किए, you can access this variable and member function in this new class that is called as inheritance. Of syntax क्या है inheritance का? First you are writing a keyword that is class, after that derive class name. कौन सी हमारी यहाँ पे derive class, that is xyz, तो आप लिखोगे क्लास xyz, आफ्टर दैट कोलन, देन विजिबिलिटी मोड, विजिबिलिटी मोड में आप लिखोगे पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड, दैट इज आफ्टर दैट बेस क्लास नेम. फॉर एग्जांपल कैसे लिखोगे आप? जैसे आपने क्लास बनाई ए, आपके एग्जिस्टिंग क्लास है ए, पहले आपने ए क्लास बनाई थी, आफ्टर दैट आपने उससे न्यू क्लास डिराइव की, दैट इज क्लास बी, जो क्या कर रही है, पब्लिकली ए को इनहेरिट कर रही है, ए को इनहेरिट कर रही है, तो दैट इज योर इनहेरिटेंस, ठीक है? ये आपकी बेस क्लास है, which is also called as parent class. This is called as base class and parent class. This is called as child class and derived class. ठीक है? ये child class है and this is also called as derived class. तो जो भी वेरिएबल आपने क्लास A में बनाए, you can use that variable in class B. So that is the concept of inheritance. Now the types of inheritance: single inheritance, multi-level inheritance, multiple inheritance. This is not hierarchical inheritance and hybrid inheritance. These 5 types of inheritance we will see one by one. फर्स्ट इज सिंगल इनहेरिटेंस. सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होगा, एक पेरेंट क्लास होगी और उससे आप एक ही क्लास डिराइव करोगे, दैट इज कॉल्ड एज सिंगल इनहेरिटेंस. In single inheritance, a class is allowed to inherit only one class, that is one subclass is inherited by one base class. ठीक है? एक base class से आप एक ही new class derive करोगे, that is called as single inheritance. For example, class A, उसका कुछ कोड रहेगा, आफ्टर दैट टर्मिनेट क्लास ए, आफ्टर दैट क्लास बी जो ए को इनहेरिट कर रही है, तो आपने लिखा एक्सेस स्पेसिफायर दैट इज पब्लिक, आफ्टर दैट ए, आफ्टर दैट code of class B. So this is your single inheritance. After that, next is multi-level inheritance. There is a level. ठीक है? क्लास ए, देन उसके नीचे क्लास बी, क्लास सी, तो देयर इज अ लेवल कि क्लास ए उससे इनहेरिट हुई है क्लास बी. ठीक है? आपने कोड लिखा क्लास ए जिससे क्लास इनहेरिट हुई है पब्लिक क्लास ए. ठीक है?
जो ए के मेंबर फंक्शन और वेरिएबल को एक्सेस कर रही है क्लास बी। इन सिमिलर वे आपने फिर से एक और क्लास बनाई, दैट इज क्लास सी। क्लास सी क्या कर रही है, क्लास बी के वेरिएबल और मेंबर फंक्शन को एक्सेस कर रही है। तो these are the level, that is multi level inheritance. After that next is मल्टीपल, दिस इज योर मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या रहेगा, तीन आपकी पेरेंट क्लास रहेगी जिससे आपने एक चाइल्ड क्लास बनाई। ठीक है, क्लास ए इज योर पेरेंट क्लास, ठीक है, उसका कोड, क्लास बी इज योर पेरेंट क्लास, क्लास बी का कोड, आफ्टर दैट क्लास सी का कोड। क्लास डी क्या है, चाइल्ड क्लास है जो किससे बनी है, पेरेंट कौन कौन है, क्लास ए क्लास, क्लास बी एंड क्लास सी। ठीक है, तो ये तीनों क्लासेस के जो भी वेरिएबल एंड मेंबर फंक्शन है क्लास डी कैन एक्सेस बिकॉज क्लास डी इज डिराइव फ्रॉम ऑल दिस थ्री क्लासेस। So this is your multiple inheritance. After that hierarchical inheritance, जो आपका multiple है उसका opposite है hierarchical, means यहाँ पे आपकी एक parent class है and तीन child class है। यहाँ पे क्या था, आपकी तीन parent class थी and एक child class थी। ठीक है, उसका opposite है hierarchical inheritance, means class A, यहाँ पे class A parent class है। ठीक है, इसके मेंबर फंक्शन और वेरिएबल कौन एक्सेस कर रहा है, क्लास बी भी एक्सेस कर रही है, क्लास सी भी एक्सेस कर रही है, क्लास डी भी एक्सेस कर रही है, दैट इज पब्लिक क्लास ए। क्लास सी एक्सेस कर रही है तो पब्लिक क्लास ए एंड क्लास पब्लिक क्लास ए। ठीक है, तो बी सी और डी ए के वेरिएबल और मेंबर फंक्शन को एक्सेस कर सकती है बिकॉज ए इज अ बेस क्लास और इट इज अ पेरेंट क्लास ऑफ class B, C and D, which is derived from class A. So this is your hierarchical inheritance. After that, last one is your hybrid inheritance. Hybrid inheritance is a combination of your all inheritance, that is single inheritance, multiple inheritance, multi-level inheritance and hierarchical inheritance. Combination of all inheritance, that is called as hybrid inheritance. Here the class A, which is the parent class of class B. ठीक है, class B से parent class है, तो ये आपका single inheritance हो गया। ठीक है, यहाँ पे B ने जो क्लास बी है उसने क्लास ए के वेरिएबल और मेंबर फंक्शन को एक्सेस किया। आफ्टर दैट क्लास सी ने भी क्लास ए के वेरिएबल और मेंबर फंक्शन को एक्सेस किया। आफ्टर दैट क्लास डी की पेरेंट क्लास कौन कौन सी है, क्लास बी एंड क्लास सी इज अ पेरेंट क्लास ऑफ क्लास डी। ठीक है, तो क्लास बी एंड सी के मेंबर फंक्शन और वेरिएबल को क्लास डी एक्सेस कर सकती है। तो दिस इज योर हाइब्रिड इनहेरिटेंस। Now the program based on all these inheritance, here I am taking a program of inheritance. I am deriving a class. मैंने क्लास कौन कौन सी बनाई है, मैंने फर्स्ट क्लास बनाई है एनिमल नाम से। आफ्टर दैट मैंने क्लास क्रिएट की है मैमल नाम से, देन क्लास क्रिएट की है हार्बीवोरस नाम से, देन क्लास क्रिएट की है काउ नाम से। ठीक है, वी विल सी द कोड। फर्स्ट यू हैव टू राइट हेडर फाइल लिखा आपने iostream.h। ठीक है, iostream.h हेडर फाइल लिखनी है आपको। आफ्टर दैट क्लास बनाई मैंने एनिमल, यहाँ पे मैंने क्लास फर्स्ट वाली क्लास हमने डिराइव की, दैट इज एनिमल। ठीक है, तो क्लास एनिमल बनाई। आफ्टर दैट उसके अंदर एक मेंबर फंक्शन बनाया, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर दिया, देन मेंबर फंक्शन बनाया एनिमल्स नाम से जिसमें मैंने एक मैसेज प्रिंट किया जस्ट कि सी आउट दिस इज एनिमल। आफ्टर दैट क्लोज दिस मेंबर फंक्शन, देन क्लोज दिस क्लास एनिमल, एनिमल को क्लोज कर दिया। आफ्टर दैट मेरी सेकेंड क्लास दैट इज मैमल। ठीक है, मैमल की पेरेंट क्लास कौन सी है, एनिमल। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा क्लास मैमल्स, आफ्टर दैट पब्लिक इन एनिमल, क्यों, क्योंकि ये उसकी पेरेंट क्लास है। आफ्टर दैट मैंने यहाँ पे फिर से एक मेंबर फंक्शन बनाया पब्लिक, मैमल नाम का मेंबर फंक्शन बनाया, उसके अंदर मैंने एक मैसेज प्रिंट किया कि दिस इज मैमल। आफ्टर दैट मैंने मैमल क्लास को टर्मिनेट कर दिया। नाउ द थर्ड क्लास दैट इज हार्बीवोरस, दिस इज आवर थर्ड क्लास दैट इज हार्बीवोरस। तो मैंने हार्बीवोरस का कोड लिखा क्लास हार्बीवोरस। आफ्टर दैट उसके अंदर एक मेंबर फंक्शन बनाया हार्बीवोरस नाम से, देन मैंने एक मैसेज प्रिंट किया। आफ्टर दैट मैंने क्लास बनाई काउ। ठीक है, लास्ट वन, दिस इज योर काउ क्लास जिसके अंदर दो पेरेंट क्लास है, दैट इज मैमल एंड हार्बीवोरस। ठीक है, तो मैंने लिखा क्लास काउ, आफ्टर दैट पब्लिक मैमल एंड पब्लिक हार्बीवोरस। आफ्टर दैट पब्लिक काउ के अंदर मैंने एक मेंबर फंक्शन बनाया काउ नाम से जहां पे मैंने एक मैसेज प्रिंट कर दिया। आफ्टर दैट मैंने मेन फंक्शन लिखा इंट मेन या वॉइड मेन, जो आपको लिखना है यू कैन राइट देयर वॉइड मेन, आप लिखोगे वॉइड मेन। आफ्टर दैट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ठीक है, काउ सी। ठीक है, जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा जो काउ ने किस किस के मेंबर फंक्शन और वेरिएबल को एक्सेस किया है, सारी क्लासेस, क्योंकि ये हाइब्रिड इनहेरिटेंस है। जो काउ है ये बेस क्लास है, किस किस क्लास की, हार्बीवोरस, मैमल एज वेल एज एनिमल। तो ये जो काउ क्लास है इसने सारे जो क्लासेस थे उसके वेरिएबल और मेंबर फंक्शन को एक्सेस किया है। I will show you execution of this code. Here I am executing this code. I am writing a class, first class जैसे हमने लिखा था, first class थी हमारी animal। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे animal class बनाई है, class animal। ठीक है,
उसके अंदर मैंने एक मेंबर फंक्शन बनाया था एनिमल नाम से, उस मेंबर फंक्शन उसका कोड लिखा, आफ्टर दैट क्लास को टर्मिनेट कर दिया। सेकेंड क्लास थी हमारी मैमल, ठीक है, मैमल में हमने एक मेंबर फंक्शन बनाया था मैमल्स नाम से और उसका कोड हमने एग्जीक्यूट किया। आफ्टर दैट वी आर क्रिएटिंग द थर्ड क्लास दैट इज हार्बीवोरस, ठीक है, हार्बीवोरस नाम से हमने क्लास बनाई थी, उसके अंदर एक मेंबर फंक्शन बनाया था हार्बीवोरस, देन टर्मिनेट दिस क्लास। आफ्टर दैट क्लास काउ जो क्या कर रही है, सारी क्लासेस को इनहेरिट कर रही है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे वेरिएबल बनाया दैट इज काउ सी, ठीक है। तो जब आपने वेरिएबल क्रिएट किया तो क्या हुआ, जितने भी सारे मेंबर फंक्शन थे सारी क्लासेस के, दे कैन gets called automatically when you are creating a derived class object, ठीक है। तो this is your output कि this is the class animal, this is class mammal, this is class herbivorous and this is the herbivory animal, ठीक है, mammal sorry। तो ये जो कोड है ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हुआ when you are creating a derived class object। तो by using the concept of inheritance we are increase the concept of free usability, ठीक है। जिससे आप क्या कर रहे हैं, डिराइव क्लास में जो आपकी पेरेंट क्लास है वहां पे मेंबर फंक्शन और वेरिएबल को बना रहे हो और उस मेंबर फंक्शन और वेरिएबल को आप आपके चाइल्ड क्लास में दैट इज डिराइव क्लास में यूज कर रहे हो, तो दैट इज योर इनहेरिटेंस। ओके, थैंक यू।